yes, अब आप शेयर करो एक्सपीरियंस ग्रैटिट्यूड का. No, I'm saying one of my maid, very old maid, and all of a sudden yesterday, I don't know what happened. She said ki I am going, I'm leaving, and I don't know if I'll come back also or not. So I said all of a sudden क्या हो गया भाई? So she I think she made the story कि मेरे घर में problem है this and that. That's what I assume. That she's saying no, it's a genuine, but पता नहीं. Anyways, but when she told me that I'm going for good, तो मेरे को तो एक second के लिए I went below the line. ये oh shit यार, I mean, so old, so reliable, everything she knows now, पूरा घर संभाल लेती है. Now look for another one, train them, this and that. So I said, nee, I don't want to go below the line. I started writing. I started giving her gratitude. तो बहुत उसके लिखती गई लेके इतने में शाम को I spoke to Nikki and I was telling her the same thing. तो she said you speak to her, एक बार आराम से बात कर. I said ठीक है. वो निक्की से फोन पे बात करी and I said अभी I will not talk, I'll talk tomorrow. And I was going for my walk and she called me. She said भाभी सुनो. I said why? She said अभी मैं नहीं जा रही हूँ. So बाद में देखूंगी जाने का. वाह ये क्या हो, अब तो कुछ बात ही नहीं करी. I was so thinking I'll talk to you tomorrow morning. एक ग्रैटिट्यूड लिखने से बहुत जल्दी असर पड़ता है. Yeah. बहुत जल्दी we see. It does affect. Right. Yeah. अभी तक भाग्यश्री जी ऑनलाइन नहीं आई है एंड इट्स ऑलरेडी 5:20. तो कौन रीड कर रहा है आज? उनकी टर्न थी, उन्होंने पूछा भी था, मैंने उन्हें बता भी दिया सुबह, उन्होंने वापस जवाब भी दे दिया कि ओके, but still she is missing, so we will not wait any. Ask Ramaji if she wants to read, otherwise Ramaji is already reading tomorrow. Acha, she's reading tomorrow. So if then no one is reading, then I can read. किसी को पढ़ना है, कोई नया पढ़ना चाहेगा? अभिलाषा, सुषमा जी. I'm reading, I think, on Friday. I also don't mind. It's okay. बेला जी आप पढ़ लीजिए फिर. ठीक है. Share screen because we will not wait any. Okay. So कल हम चूज व्हाट यू लव पे थे, तो हमने देखा कि कैसे आपको जो चीज चाहिए उसको आप देखकर भी यू हैव टू गिव लव. आपको जलन, ईर्ष्या, ये सब कुछ भी फीलिंग नहीं आनी चाहिए. डिसअपॉइंटमेंट, आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है. अगर किसी के पास में आपकी पसंदीदा गाड़ी है तो आप उसे प्यार दीजिए. वो गाड़ी आपको इसलिए दिख रही है ताकि आप उसे पा सको. इट इज कमिंग नियर टू यू. यूनिवर्स का ये it is one of the way universe plays with you. Please everyone mute yourself. तो यूनिवर्स एक तरीके से आप लोगों के साथ खेलता है, आप लोगों को वो चीजें दिखा के जो आप चाहते हैं, ताकि आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सको, उसके लिए प्यार दे सको, एंड देन इट गिव्स इट टू यू. पहले आप पिक्चर्स देखते हो, आप उसे you see it on the screen or on a paper or you think about it, then it starts showing you. आपको वो विजुलाइज कराते कराते खुद आंखों से दिखाने लग जाता है. आप जब फिर वहां पे भी प्यार देते हो, तब वो आपकी झोली में आके गिर जाता है. इट इज व्हाट वी स्टार्टेड कल, जहाँ पे हमने स्टॉप किया था. इट वाज मीनिंग दैट. अब हमें यहाँ से पढ़ना है. व्हेन यू फील good about anything. Okay, I'll start. Yes. When you feel good about anything any person has, you are bringing it to you. When you feel good about the success of another person, the happiness of another person, or all the good things anyone else has, you are choosing those things from the catalog of life and you are bringing them to yourself. तो अगर आप खुश हो किसी और की खुशी में, अगर आपको अच्छा लग रहा है किसी और की सक्सेस देखकर, यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ दैट पर्सन, यू आर फीलिंग हैप्पी फॉर दैट पर्सन, देन यू आर ब्रिंगिंग सक्सेस इन योर लाइफ आल्सो, यू आर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ आल्सो. बहुत सिंपल फॉर्मूला है. दूसरे की खुशी में खुश होना सीखो एंड यू विल बी हैप्पी थ्रू आउट योर लाइफ. Yes, if you meet someone. If you meet someone who has qualities you wish you had, love those qualities and feel good about those qualities in that person. And you are bringing those qualities to yourself. If someone is smart, beautiful, or talented, love those qualities and you choose those things for you.
यहाँ अभी हमने देखा इतने पैराग्राफ्स में वो हमें मटेरियल थिंग्स के बारे में बता रहा था. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटीज आल्सो. अगर मुझे बेला जी के पढ़ने का तरीका अच्छा है तो आई हैव टू अप्रिशिएट दैट. And when I appreciate that point in her, then probably I will end up reading like her also. It is not कि मुझे उनसे जलन या ईर्ष्या करनी चाहिए कि यार ये इतना अच्छा पढ़ती है, मुझसे तो नहीं होता है, मैं कैसे पढ़ पाऊंगी, मैं तो कभी ऐसा पढ़ ही नहीं पाऊंगी. तो नहीं, these are the wrong tracks you are taking. You have to be, wow, Bilaji, you are too good while reading the book. I am like, I appreciate your reading. And then you can practice it, you can bring it, and the universe will give it to you. It's not a difficult thing. लेकिन आपको पहले उसे लाइक अप्रिशिएट करना पड़ेगा. अगर आपको किसी का बेकिंग पसंद है तो यू डोंट हैव टू फील जेलस कि मैं इतना अच्छा बेकिंग या इतना अच्छा कुकिंग क्यों नहीं कर सकती हूँ. why only the other person is doing. अगर आपको किसी की क्वालिटीज पसंद है, if someone is humble, if someone is kind, if someone is passionate about some things, you have to love that qualities in them, you have to appreciate them. तो आपके पास भी वो क्वालिटीज अपने आप आ जाएगी. इसीलिए हम आइडल्स चूज करते हैं to check ourselves. There is lot of disturbance. Please mute yourself. गंगावती जी, म्यूट योरसेल्फ. Oh, मैंने Thank you, अपनी Rama पे ना ji. ध्यान नहीं दिया, सॉरी. So you have to love the qualities also. इसीलिए हम कहीं ना कहीं अपने आइडल्स चूज करते हैं, क्योंकि आइडल्स में हमें क्या अच्छा लगता है, फिजिकल अपीयरेंस के बाद भी वी गो फॉर देयर क्वालिटीज. कुछ क्वालिटीज होती है जो हमें पसंद आ जाती है उनकी. तो व्हेन वी अप्रिशिएट दोस क्वालिटीज we attract those qualities for us also. It can be anything. They can be talented in something, some field. अगर ड्राइंग करती हूँ और मैं किसी और के ड्राइंग्स देख के जलती हूँ, so I will never become a better person in drawing. I will always lack something. I will always be behind. I might try. लेकिन अगर मेरे को ईर्ष्या है किसी और की ड्राइंग से, तो I will never succeed. So that is what the book is trying to tell us. Give love, appreciate them, and you can attract it towards yourself. If you want to become a parent, If you want to become a parent and you've been trying for a long time, then give love and feel good every single time you see a parent with a child. If you feel depressed when you see children because you don't have a child, then you are repelling and pushing children away from you. Life is presenting children to you each time you see them, so you can choose. ये हम लोग की बहुत लोगों की आदत होती है कि हमें किसी कारण से वी आर नॉट एबल टू बिकम अ पेरेंट. हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं. तो व्हाट वी डू इज, जब हम किसी और को देखते हैं किसी बच्चे के साथ में, छोटे बच्चे के साथ में, तो हमारे अंदर अपने लिए ही वी हैव दैट चिड़चिड़ापन इनसाइड अस कि सबके बच्चे हो रहे हैं, जो भी मेरे एज के लोग थे उन सब की शादियां हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन मेरे पास में कोई बच्चा नहीं है. भगवान ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ में. दैट इज द रॉन्ग अप्रोच. ये बुक ये बता रही है हमें. उस समय वी शुड फील लव फॉर दैट चाइल्ड, फॉर दैट पेरेंट, कि कितना सुंदर बच्चा है इसका, कितने खुश है ये लोग आपस में. I will also have that opportunity one day. We have to be positive, and then the universe will give you that child. बच्चों को देख के उनसे कन्नी काटना, उनको गोदी में नहीं खिलाना, उनको अपने से दूर रखना. And if you want a kid, you are doing all this. The universe will keep the kid away from you. बच्चा नहीं देगा यूनिवर्स. ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है समझने के लिए. जस्ट एक माँ बाप के लिए एक बच्चे का होना बहुत जरूरी होता है. आफ्टर अ सर्टेन एज वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ किड. इसी से आप पूरा एसेंस समझ सकते हो इस चूज व्हाट यू लव का, कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो जो बच्चे आपको आसपास दिख रहे हैं उन्हें प्यार करिए. अगर आपको माँ बनना है तो कोई माँ आपको दिख रही है बच्चे के साथ में, तो उन्हें लव दीजिए, and you will get the same thing back in your life. You will attract it back. Yes, when you are playing a sport. When you're playing a sport and another person wins, when a work colleague tells you they got a pay raise, when someone wins the lottery, with a friend tells you that their spouse gave them a surprise gift of a weekend away, or that they bought a beautiful new house,
or that their child won a scholarship, you should be as excited as they are. You should be as excited and happy as though it has happened to you, because then you are saying yes to it. Then you are giving love to it and you are bringing it to you. बचपन में हम लोगों ने देखा होगा कि अब जैसे दो सिबलिंग्स होते हैं, सिबलिंग्स छोड़ो, कजन्स होते हैं, एंड लाइक मेरे साथ तो बहुत होता था बिकॉज माय कजन ब्रदर, मेरे मामा का लड़का वाज इन जेवियर्स एंड उसके पहले ही वाज इन लामार्ट्स एंड ही वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड मतलब टॉपर था वो, 90% से कम उसके मार्क्स आते ही नहीं थे, एंड हम लोग साथ में थे, बराबर की क्लासेस में थे। तो माय फादर वाज ऑलवेज लाइक कि वो तो पढ़ता रहता है, तुम तो पढ़ती ही नहीं हो, वो तो मतलब ऑलवेज यू नो दैट कंपैरिजन वाज देयर। मॉम नेवर यूज्ड टू डू इट, बट पापा के मुंह से कभी कभी निकल जाता था। तो वो जो कंपैरिजन होता है मत करिए अपने बच्चों को, यू नो यू आर पुलिंग योर किड डाउन योरसेल्फ। तो जब आपको आपको किसी बच्चे आपको अपने बच्चे में कोई क्वालिटी चाहिए और वो किसी और बच्चे में है, तो उस बच्चे की क्वालिटी को अप्रिशिएट करते वक्त में अपने बच्चे को हीन भावना से ग्रस्त मत होने दीजिए। दिस इज द बेस्ट वे आई कैन पुट इट। ये बहुत करते हैं हम लोग, बिना जाने बिना समझे वी कीप डूइंग इट, रिपीटेड मोड में करते रहते हैं। तो स्टॉप दैट राइट नाउ। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि अगर आपको अच्छा घर चाहिए तो दूसरे के घर से मत चलिए। अगर कोई बाहर गया हुआ है और वो अपने पिक्चर्स फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है तो उससे चलिए मत, उसके कारण अपने हस्बैंड से लड़ाई मत करिए कि ये तो चला गया, मुझे तुम कब लेके जाओगे, मुझे तो तुम लेके जाते ही नहीं हो। और अगर if you're not fighting with your partner, then you may be feeling low कि ये चला गया, मैं यहीं पे बैठा हूँ, मेरी लाइफ ही ऐसी है, मेरे साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं है। डोंट लेट दोज फीलिंग्स कम इनसाइड यू। अगर आपकी फ्रेंड आपसे शेयर कर रही है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने आज डिनर पे लेके गए, सरप्राइज गिफ्ट भी दिया, आई एम सो हैप्पी, तो बी हैप्पी इन हर हैप्पीनेस एंड मे बी योर हस्बैंड विल एंड अप टेकिंग यू ऑन अ गेट अवे, not only give you dinner and gift, but maybe he will take you on a surprise weekend getaway. तो it all depends कि आप प्यार दे रहे हो कि आप नफरत, या नफरत is a very far-fetched word, मतलब अगर आप प्यार दे रहे हो कि आप लैक ऑफ प्यार है आपके पास में, it depends, the whole story depends on that. So be happy, be happy, be happy in any circumstances is what this is all about. अभी आपने सारा पढ़ लिया है कि पॉजिटिविटी रखना है, फ्रीक्वेंसी को भी पॉजिटिव रखना है, तो अब ये जो है कि आपको दूसरों की खुशी में भी खुश रहना है, टू बी पॉजिटिव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको सारांश मिल रहा है इस पूरे से। तो जब आपको एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस होती है, आपको ऐसा सोचना है कि वो सब आपके साथ हो रहा है, जो दूसरे के साथ हो रहा है और आप देख रहे हो, तो आपको ये सोचना है कि वो सारा चीज आपके साथ हो रहा है, तो अंदर से खुशियां आएंगी, और जब वो खुशियां आएंगी तब आपका यू विल गेट व्हाट यू वांट। अगेन द होल थिंग कम्स डाउन टू you will get what you want if you are happy about other people's happiness. Yes, when you see your dream car, When you see your dream car, a happy couple, the perfect body, children, great qualities in a person, or whatever it is you wanted, means you are on the same frequency on those things. Be excited because your excitement is choosing it. तो अगेन ये हमको यही बता रहे हैं कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, जैसे कि आपने रेडियो चैनल चालू किया और वहाँ पे सैड सॉन्ग बज रहे हैं, अब आपको वो सैड सॉन्ग नहीं सुनना है तो आपने चेंज कर दी फ्रीक्वेंसी और कोई ऐसे चैनल पे चल गए जहाँ पे पेपी नंबर्स बज रहे हैं और आप उस पेपी नंबर्स को सुन के खुश हो रहे हो ना। तो वैसे ही है ये चीज, जब आप अच्छी चीजें देख रहे हो आपकी फ्रीक्वेंसी भी अच्छी हो जाती है। उस फ्रीक्वेंसी जब अच्छी हो जाती है तब आप उस चीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो, क्योंकि यू आर ऑन दैट सेम फ्रीक्वेंसी नाउ। You wanted happy songs, you are getting happy songs. Be happy about those happy songs and then you will get more happiness in your life. It is very simple. Yes, everything in life is Everything in life is presenting itself to you, so you can choose what you love and what you don't love. But only love brings what you want to you. Life's catalog contains many things you don't love. So don't choose them by giving bad feelings. Judge another person and think they are bad
and you're bringing negativity to you. Feel envious or jealous or something another person has, and you bring negativity to you while pushing away the very thing you want with a mighty force. Only love brings what you want to you. So now, This just a second. So now imagine that you are in a marriage. Now a person is wearing some kind of jewelry which you love and you appreciate that jewelry. You're talking about that jewelry to your friend. आप बात कर रहे हो अपने दोस्त के साथ में, वाओ यार कितना अच्छा नेकलेस पहना हुआ है. Fine, it is good. The universe is attracting that jewelry to you, towards you. Now what happens is उसी function में किसी ने बहुत लो नेक ब्लाउज पहना हुआ है या फिर इस तरीके से कपड़े पहने हुए हैं कि जो थोड़े से ऑफ बीट है. I will not say vulgar or I will not use those words, but थोड़े से off beat है. So now you start complaining to your friend also about that kind of appearance. तो ये आपने क्या किया, आपने एक तरफ प्यार दिया है और वहीं पे आप दूसरी तरफ कंप्लेन कर रहे हो और ऐसा कुछ चूज कर रहे हो जो आपके लिए नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है. तो यू आर पासिंग द जजमेंट. और जब आप जजमेंट पास करते हो तो वो जो नेकलेस आपके पास आने वाला था वो वहीं रुक जाता है और आपसे 10 कदम पीछे चला जाता है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क. यहाँ पे क्लियरली बोला गया है आपके लाइफ कैटलॉग में आपको जो चीज पसंद है उसे चूज करिए, जो चीज पसंद नहीं है उसे नजरअंदाज कर दीजिए, घूम जाइए उसकी तरफ से. डोंट पास जजमेंट ऑन दोज थिंग्स. अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो और आपको रेड ड्रेस चाहिए तो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर रेड ड्रेस. अब वहाँ पे ग्रीन ब्लू सब कलर के ड्रेसेस हैं और आप उन पे जजमेंट पास करना शुरू कर दो, यार ये ड्रेस कैसी है, इसका कट ठीक नहीं है, इसका तो लेंथ ठीक नहीं है, आपको पसंद नहीं है, घूम जाइए. आप जो आपको चाहिए आप उस पर ध्यान दीजिए और उसे देखते रहिए. तो ये बहुत सिंपली यहाँ पे बताया गया है कि एक तरफ अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हो और दूसरी तरफ वहीं पे आप खाने की बुराई शुरू कर दिए. आप कोई शादी में हो, आपने अप्रिशिएशन किया लोगों का, ड्रेसिंग का, सब कुछ का, माहौल का, डेकोरेशन का आपने अप्रिशिएट कर दिया, लेकिन वहीं पे जो खाना था आपको पसंद नहीं आया और आप लोग शुरू हो गए खाने को लेकर, यार इतना अच्छा डेकोरेशन किया, खाना भी थोड़ा अच्छा दे देता, मजा आ जाता. तो ये आपने अगेन यू हैव पास द जजमेंट. आपको नहीं पता कि सामने वाले ने क्यों इस तरीके का खाना रखा या उसने क्या रखा था और वो कैसा टर्न अप हुआ. तो यू आर पासिंग द जजमेंट इज ब्रिंगिंग टेकिंग यू डाउन द लाइन. आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सामने वाले की जो सर्कल ऑफ लाइफ घूम रही है वो उसकी अपनी खुद की घूम रही है. आपने अपने सर्कल ऑफ लाइफ में वो रोड़ा अटका दिया है एंड वहां पे आप रुक गए हो. आप रुके तो रुके, आप पीछे जाना शुरू कर दिए हो अब. और जब आप पीछे जाते हो तो यू नो कि यू आर गोइंग फार अवे फ्रॉम योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स. ऑलवेज रिमेम्बर कि आप अपने ड्रीम्स एंड डिजायर के लिए ये सब कुछ कर रहे हो. सेल्फ डेवलपमेंट यस, बट आज अगर हम यहाँ पे बैठे हैं सुबह से आके तो वी नो कि हमें अपनी लाइफ बेटर बनानी है और हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाए. इसके लिए हम इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना सब कुछ सीख रहे हैं. एटलीस्ट आई एम डूइंग दैट ओनली. मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि मुझे बेटर पर्सन बनना है, ऑफ कोर्स यस बनना है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये भी है कि जो मैं चाहती हूँ, जो मुझे चाहिए वो बिना किसी हिंड्रेंस के मेरे पास आ जाए. तो कीप द नेगेटिविटी आउट ऑफ यू. अपने आप को प्यार से भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए. यस, दिस इज द मिरेकल. This is the miracle that happens every time to those who really love. The more they give, the more they possess. Rainier Maria Rilke, 1875 to 1926, author and poet. तो ये एक जादू होता है, एक मिराकल होता है हर बार हमारे साथ में कि जब हम सच में प्यार करते हैं किसी के साथ और हम सच में देते हैं, अपने दिल से देते हैं, तो हमारे पास में ज्यादा भर भर की चीजें आती हैं. भगवान हमें फिर छप्पड़ फाड़ के देता है. जब हम देते हैं तो ऊपर वाला भी हमें देता है. यूनिवर्स विल गिव अस इन अबंडेंस इट कम्स बैक टू अस. तो ये एक मिराकल बोल लीजिए, जादू बोल लीजिए, आपको जो बोलना है बोल लीजिए, बट ये अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग हियर. यस. The law of one you. There is नाउ a जस्ट अ सेकेंड. ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि देयर इज अ मिरर एंड दैट मिरर में वो लड़की अपना खुद का रिफ्लेक्शन देख रही है एंड शी इज पॉइंटिंग आउट द पावर, जो ऊर्जा है, शक्ति की ऊर्जा है जो
एक वाइट गोला दिख रहा है। ये अगेन आपने मैजिक बुक में मिरर प्रैक्टिस किया है, विच वाज द वन ऑफ द लास्ट चैप्टर्स। इट वाज सो पावरफुल कि वो बाद में दिया गया था, लास्ट में आया था वो उस चैप्टर में, उस बुक में। तो यू कैन अंडरस्टैंड अगेन कि इसका क्या पावर होता है। आप खुद एक पावरफुल शक्ति के कुंज हो। यू आर मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल देन एनीवन एल्स इन योर लाइफ। सबसे ज्यादा शक्तिमान कौन है? आप खुद हो। तो ये अब आपको बता रहा है कि लॉ ऑफ वन क्या होता है। दैट इज यू, ओनली यू। यहाँ पे कोई हस्बैंड, कोई वाइफ, कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स, कोई फ्रेंड नहीं आता है। जितने पावरफुल आप हो उतना पावरफुल कोई भी नहीं है। ऑलवेज रिमेम्बर दैट, ऑलवेज। यस, The law of one you. There is a simple formula you can use for the law of attraction that will stand you in good stead with every person's situation and circumstances. As far as the law of attraction is concerned, there is only one person in the world, you. There is no other person and nothing else as far as the law of attraction is concerned. There is only you, because the law of attraction is responding to your feelings. It's only what you give that counts. And it's the same for every other person. And so, in truth, the law of attraction is the law of you. There is only you and there is no other person. For the law of attraction, the other person is you. And that other person is you, and those other persons are you. Because whatever you feel about anyone else, you are bringing it to you. So the law of attraction is clearly saying it is the law of you. अब what is law of you? It is very simple. आप जो किसी के लिए बोल रहे हो वो आप खुद के लिए बोल रहे हो। अगर आप किसी के लिए बोल रहे हो कि ये तो बहुत झगड़ालू इंसान है, तो आप अपने लिए ये बात बोल रहे हो कि आप बहुत झगड़ालू है। अगर आप किसी के लिए बोल रहे हो कि ये बहुत प्यारा इंसान है, तो ये आप अपने लिए बोल रहे हो कि मैं बहुत प्यारा हूँ, प्यारी हूँ। तो इट इज बहुत अच्छे से इन्होंने बता दिया है आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वो लॉ ऑफ यू क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जो आप किसी और के लिए बोलते हो वो सब एक्चुअली आप अपने लिए बोल रहे हो, क्योंकि आप उसे अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जितने भी सारे लोग हैं, फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन द अदर पर्सन इज यू एंड दैट अदर पर्सन इज ऑल्सो यू। मतलब जो सामने मिरर में है वो तो आप हो ही, जो आपके बगल में खड़ा है वो भी आप ही हो। अगर आपके पास में घर में 10 जन रहते हैं तो वो सब आप हो। आप उनके लिए जो भी जजमेंट पास कर रहे हो आप सब अपने लिए पास कर रहे हो। मेड ने खाना अच्छा नहीं बनाया तो आप खाना अच्छा नहीं बना रहे हो। जैसे मेड बहुत लेट लतीफ है तो आप अपने लिए ये बात बोल रहे हो कि वो लेट लतीफ है। अगर आप बोल रहे हो कि मेड बहुत हम्बल है तो आप अपने लिए बोल रहे हो। एवरीथिंग वट एवर यू आर सेइंग फॉर अदर पर्सन इज यू आर सेइंग फॉर योरसेल्फ, यू आर ब्रिंगिंग इट टू योरसेल्फ। तो कोई ना कोई आपके लिए भी बोलेगा कि आप लेट हो, आप लेट पहुंच रहे हो कहीं पे। आपने उसको बोला कि शी इज नॉट सिंसियर, तो कहीं ना कहीं ये घूमकर आपके पास आएगा कि अरे यार ये लड़की तो सिंसियर है ही नहीं बिल्कुल भी, इसे तो कुछ भी बोल दो इससे वो काम होता ही नहीं है। जैसे आप मेड के लिए बोलते हो ना कि इसे कुछ भी बोल दो ये तो अपने ही स्पीड में काम करती है, इसे मैंने बोला था डस्टिंग करने का इसलिए नहीं किया। तो वैसे ही आपको आपका बॉस बोलेगा कि इसको मैंने बोला था कब काम कंप्लीट करके मुझे सबमिट करने का, लेकिन इसने नहीं किया। तो जो भी आप किसी और के लिए बोलोगे वो घूमकर आपके पास आएगा। इसके लिए मत बोलो कुछ भी गलत किसी के लिए। यस, What you feel about another person, what you think or say about another person, what you do to another person, you do to you. Give judgment and criticism and you give it to yourself. Give love and appreciation to another person or anything and you give it to yourself. There is no other for the law of attraction. So it makes no difference if someone else has what you want. When you feel love for it, you are including it in your life. And anything you don't love, simply turn away from it without judgment and you won't include it in your life. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एग्जांपल दे दिया कि अगर आप लोगों को कुछ पसंद नहीं है तो उस चीज के सामने से हट जाइए, उसके बारे में जजमेंट पास मत करिए। हम लोग ये काम बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं और उसे हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ में। हम अप्रिशिएट इतना नहीं कर पाते जितना कि हम नेगेटिव जजमेंट पास करने में बहुत होशियार होते हैं। ह्यूमन रेस की ये टेंडेंसी है।
जानवर तो कर ही नहीं सकता है ये सब काम, हमारे कोई भगवान ने ये सहूलियत दी है कि वी डू दिस एंड वी डू इट इन अबंडेंस। ये सब गलत चीज के लिए जजमेंट पास करते रहना बैठ के, यहाँ तक कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ते हैं। आप एक बार उसके शूज में जाके देखो कि व्हाट ही इज डूइंग। अगर उन्हें डिमोनेटाइजेशन किया तो हमें प्रॉब्लम था, अगर उन्होंने 360 लगाया कश्मीर में तो लोगों को प्रॉब्लम था, अगर उन्होंने मतलब एनीथिंग, जो भी बिल पास हुआ, जो भी हुआ, इट्स यू शुड अंडरस्टैंड कि ही इज नॉट डूइंग एवरीथिंग। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सब मिलजुल के वहां पे काम हो रहा है। ही इज द फेस, बट ही इज नॉट डूइंग एवरीथिंग। सब कुछ मिलके पास होता है। अगर आपको पता है, आपने सिविक्स कभी पढ़ा है, तो यू नो हाउ द बिल्स आर पास। बिल वाज पास, उसमें वो क्या किए, लेकिन अब जजमेंट के कटघरे में उनको खड़ा कर दिया गया एंड लोग फटाफट फटाफट जजमेंट पास कर रहे हैं। तो ये जो जजमेंट पास करते हैं हम, वो हमें इफेक्ट करता है। मोदी जी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, यू हैव टू रिमेम्बर दैट। मोदी जी को भी छोड़ दो, ये मैं पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये सबसे नॉन जरूरी काम है हमारे हमारे लाइफ का, और हम ये सबसे ज्यादा करते हैं। अब अगर हम ममता बनर्जी के लिए भी जजमेंट पास कर रहे हैं तो इट्स नॉट अफेक्टिंग हर। वो तो पावर पे चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है। देयर इज नो स्टॉपिंग हर। उसके जो अपने कर्म किए हुए हैं, उसने जो अपना सब कुछ किया है, उसने कुछ तो ग्रेटिट्यूड रखा होगा, कहीं तो प्यार दिया होगा, बिकॉज आज जो वहां पे जहाँ पे वो है वो ऐसे ही नहीं है। There are some things which are pulling her up on that ladder. लेकिन हम अपने आप को नीचे गिराते जाते हैं। जितनी बार हम उसके उसके कंप्लेंट्स करते हैं, हम उसके कपड़ों तक के लिए जजमेंट पास कर देते हैं। हम उसके कपड़े, मतलब व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर। जस्ट नोट योरसेल्फ। हमने राहुल गांधी की बुद्धि के लिए जजमेंट पास कर दिया, तो आप सोच लो, आप उसकी जो बुद्धि के लिए जजमेंट आप पास कर रहे हो ना, वो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। जस्ट think on that lines and you will understand कि आप जो भी कर रहे हो, यहाँ बैठे बैठे आप अपने कंट्री के इकोनॉमी के लिए जजमेंट पास कर रहे हो। आप यहाँ बैठे बैठे आप ये फलाना व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, सुशांत सिंह ने सुसाइड क्यों किया। You are talking about all things which are not relevant to you, and when you are passing those judgment for other people, unknown people, actually देखा जाए तो unknown people के लिए आप judgment pass किए जा रहे हो, and that is what is harming you in a very big way, जो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो give love and appreciation। और अगर आप प्यार नहीं दे सकते हो, if there is no love inside me for Mamata Banerjee, what I should do is keep my mouth shut, keep my thoughts positive, and I should not talk about her। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। Being an ardent follower of politics, it was very difficult for me to come out of it, very difficult, but somehow I have managed, बहुत बार above the line रहकर, बहुत बार टिपिंग पॉइंट को मन में रखकर, I have managed to not pass any kind of judgment for all these people around me, and I know this is helping me in some way or the other। पक्का मुझे हेल्प कर रहा है, दिख नहीं रहा होगा मुझे अभी, लेकिन मुझे बहुत बड़ी तरीके से हेल्प कर रहा है। मेरी ड्रीम्स पूरी हो रही है ना, इससे ज्यादा बड़ा मुझे क्या इशारा मिलेगा यूनिवर्स के साथ में। बहुत जजमेंट पास किया है मैंने, बहुत जजमेंट। जो so नहीं है, dangerous, yeah। यस, जो दुनिया में नहीं है, मैंने उनके लिए भी जजमेंट पास किया है। मतलब अगर नेताजी के लिए पास किया है, तो मोहनदास करमचंद गांधी के लिए भी पास किया है। अब किसी को छोड़ा ही नहीं होगा पॉलिटिक्स में मैंने आज तक। बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज है, मेरे व्यूज अभी भी है, लेकिन नाउ आई डोंट पास जजमेंट, आई डोंट शेयर, आई डोंट टॉक अबाउट इट, क्योंकि आई कैन नॉट हेल्प इट। मैं पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करने वाली हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द फेस ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, सो आई कीप माई माउथ शट। तो दैट इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड। ये पॉलिटिक्स के अलावा मेरे पास में कोई एग्जाम्पल नहीं है इस चीज को बहुत अच्छे से समझाने का। हमें जिस काम से मतलब नहीं है उससे दूर रहो, उसके बारे में गलत बात मत बोलो। अगर आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते हो तो नेगेटिव भी मत बोलो। हाँ, अगर आपको कुछ पॉजिटिव दिखता है कि केजरीवाल अगर दिल्ली के लिए इतना कुछ कर रहा है, ठीक है, वो जैसा भी है, बट वो उसने काफी कुछ किया भी है, तो इफ यू कैन टॉक अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट्स, टॉक अबाउट इट। नेगेटिव को भूल जाओ। अगर आप बात नहीं कर सकते हो तो घूम जाओ, सिंपल लॉजिक है। अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो सीधा घूम जाओ। यस, देयर इज ओनली यस फॉर द लॉ there, ऑफ अट्रैक्शन। there अब is आप one अब there आपको is पता
एक सेकंड बिला जी, अब आपको पता चलेगा कि नो क्यों नहीं हमें बोलना चाहिए, क्यों नहीं हमें लिखना चाहिए, एंड यस क्यों पावरफुल होता है, नो की वैल्यू क्यों 0 होती है यूनिवर्स के लिए। यस बिला जी। There is only yes for the law of attraction. Turn away from the things you don't love and don't give them any feelings. Don't say no to the things you don't love because saying no brings them to you. When you say no to the things you don't love, you're feeling bad about them. You're giving bad feelings, and you will receive those feelings back as negative circumstances in your life. तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से आपको बताया गया है कि अगर आप नहीं बोलते हो किसी चीज को तो वो नहीं गायब हो जाता है यूनिवर्स के लिए, और वो फिर जो बचता है उस पे वर्क करना शुरू कर देता है। तो आपने अगर बोला कि मुझे सर में दर्द नहीं चाहिए, तो वो नहीं गायब हो गया और क्या बचा, मुझे सर में दर्द चाहिए, तो अब यूनिवर्स आपको सर में दर्द ही देगा। अब हम कुछ अगर कुछ नहीं चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हमें उस पे हमेशा फोकस करना चाहिए। पूरे बुक में हम यही करते आए हैं, फोकस करते आए हैं कि हमें क्या चाहिए उस पर। This is not something new. We have been talking about this Nahika thing in Magic Book also, and यहाँ पे भी सब जितने भी हम हैं चारों जन we talk about this कि नहीं यूज मत करिए। तो बहुत क्लैरिटी है हमारे अंदर में। और दूसरा जो थोड़ा बहुत क्लैरिटी और चाहिए, वो जैसे जैसे हम पैराग्राफ पढ़ेंगे वैसे वैसे और क्लियर हो जाएगा। No is not a good word, it is a negative word. It has to be avoided in all circumstances. इसका मेन चीज है कि आपको फोकस ही नहीं करना है जो चीज आपको नहीं चाहिए उस पर, आप घूम जाइए उस तरफ से। अगेन दे आर सेइंग टर्न अवे फ्रॉम द थिंग्स यू डोंट लव। सिंपल है, टर्न अवे फ्रॉम द थिंग्स यू डोंट लव। ऐसा होता है कि अगर हमको अपने बच्चे का दिन भर लैपटॉप पे बैठना नहीं चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे, तो वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन पढ़ाई करना, इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिम नैगिंग हिम ऑल द टाइम कि तुम तो दिन भर बैठे रहते हो लैपटॉप पे। यू कैन जस्ट आस्क हिम कि राघव कब पढ़ने का प्लान बना रहे हो, कितने बजे पढ़ने बैठोगे। तो सी द पॉजिटिविटी इंस्टेड ऑफ यू आस्किंग हिम अगेन एंड अगेन कि कब तुम लैपटॉप पे बैठे रहोगे, कब उठोगे लैपटॉप से। इफ यू आस्क हिम, इफ यू रिफ्रेज योर सेंटेंस एंड यू आस्क हिम राघव पढ़ने का टाइम कितना बजे का सेट किए हो, आज का क्या स्ट्रक्चर है, इट इज मोर पॉजिटिव, इट गिव्स यू मोर पॉजिटिविटी, इट गिव्स राघव मोर पॉजिटिविटी। जैसे आई एम डूइंग इट इन माय डेली लाइफ अभी। तो आई कैन सी, पहले पहले मैं उसको बोलती थी तुम दिन भर तो लैपटॉप पे बैठे रहते हो, दिन भर गेम खेलते रहते हो, स्कूल से निकलते हो फिर से लैपटॉप पे चले जाते हो। तो वो मेरे को बोलता था मम्मी आप तो दिन भर मुझे नैक करती रहती है। लेकिन जब से मैंने ये बोलना शुरू किया कि राघव पढ़ने कब बैठोगे, उसका भी चेंज हो गया सेंटेंस। हाँ मम्मी थोड़ी देर में बैठ रहा हूँ, आप एक बार वापस मुझे याद दिला देना। तो यू सी द डिफरेंस व्हाट इज हैपनिंग। वो मुझे नेगेटिविटी नहीं दे रहा क्योंकि मैं उसे नेगेटिविटी नहीं दे रही। तो ऐसे ही आपको करना है कि यू हैव टू कीप योर if you are feeling bad about them, you have to see how you turn away from it। कितना 360 डिग्री घूमना है, राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, बैक टर्न लेना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना घूम रहे हो। यस। You can't say no to anything because when you say no, I don't want that, you are saying yes to the law of attraction. When you say the traffic is terrible, the service is really bad, they are always late, it's so noisy in their here, the driver is lunatic, I have been on hold for so long, you are saying yes to those things and you are including more of all of them in your life. Turn आप away. एक सेकेंड, तो आप अगर बोलोगे कि दैट ड्राइवर इज अ लुनाटिक में कुछ भी नो तो है ही नहीं, इट इज लेकिन आप देखो लुनाटिक कैसा वर्ड होता है, इट इज अ नेगेटिव वर्ड, इट इज नॉट यू नो इट्स अ नेगेटिव पावर वर्ड। लुनाटिक आप किसी को बोल रहे हो तो वो कैसा वर्ड है। तो अगेन यू आर क्रिएटिंग समथिंग विच यू डोंट वांट इन योर लाइफ बाय योर वर्ड्स, बाय योर थॉट्स। तो आप ये सोच लो कि वो फिर आपके पास आएगा, वैसा ही घूम के आएगा। कोई ना कोई आपको भी बोलेगा कि तुम तो लुनाटिक हो, तुम तो वैसे बिहेव कर रही हो लुनाटिक की तरह। तो जस्ट बी पॉजिटिव अबाउट ऑल दिस थिंग्स ऑलवेज। यस, आप मतलब किसी और को देखकर या किसी और के हिसाब से आप अपना काम नहीं कर सकते हो। आप सपोज करो आप रास्ते में जा रहे हो कहीं पर एंड वहां पे आपने रेड सिग्नल, आपके जाते जाते रेड सिग्नल हो गया, लेकिन आपके आपकी वाली गाड़ी निकल गई उस रेड सिग्नल पे और आप भी निकल गए और आपके पीछे वाली गाड़ी भी निकल गई।
लेकिन आपकी गाड़ी को पुलिस ने हाथ दिखा के रोक दिया, तो आप उसे वहां पे खड़े होके ये नहीं बोल सकते हो कि तुम मेरा चालान क्यों काट रहे हो, मेरी आगे वाली गाड़ी भी तो दिखी, मेरी पीछे वाली भी तो गाड़ी दिखी। उनके कर्म जो है वो पुलिस अपने आप करेगा, उनको अपने आप पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन आपने जो कर्म किया उसी समय हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिल गया। यू कैन नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स। तो व्हाई यू आर कंप्लेनिंग कि वो गाड़ी ऐसे चला रहा है, लुनाटिक की तरह चला रहा है, या वो एकदम धीरे धीरे चलाता है, इससे तो मुझे आगे जाना चाहिए। मतलब कोई भी तरीके से आप सेटिस्फाइड हो ही नहीं रास्ते पे। कोई तेज चला रहा है तो आपको इश्यूज है, कोई धीरे चला रहा है तो आपको इश्यूज है, कोई राइट से आपके आगे चला गया तो आपको इश्यूज है, कोई लेफ्ट से आपके आगे चला गया तो आपको इश्यूज है, कोई किसी ने हॉर्न मार दिया तो आपको इश्यूज है। यू नो ऑल दिस थिंग्स कि हर चीज के लिए आप कंप्लेन ही कर रहे हो रास्ते पे जाने के बाद में। तो आप खुद कैसे हो? आप अपने आप को तो देख लो पहले कि आप खुद कैसे हो। व्हाट हाउ आर यू परफेक्ट व्हाइल ड्राइविंग द कार? आई मीन यू शुड सी दैट फर्स्ट एंड देन यू शुड पास योर जजमेंट्स। तो इट इज लाइक दैट कि आप किसी और के कारण अपना चालान कटाते जाओगे तो आप ही को नुकसान है। अमाउंट तो आपका भर रहा है चालान का, उसको क्या गया? आप उसको देखा देखी आपने किया, लेकिन उसका क्या गया? वो तो चला गया एंड यू आर देयर, यू आर स्टिल देयर, आप भरपाई करने में लगे हुए हो। तो इट्स बस आपको नहीं वर्ड यूज नहीं करना है, आपको किसी को दूसरे को देख के अपना काम नहीं करना है। यू हैव टू बी यू ऑल द टाइम एंड योर यू इज यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑन पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। यस। Turn away from the things you don't love and don't give them any feelings because they are fine as they are, but they have no place in your life. So, no evil, hear no evil, speak no evil. Mariam on the Toshiku shrine in Japan. Japan. It's a see no evil, hear no evil, speak no evil. Maxim on the Toshio sign in Japan, 17th century. ये कहीं और आपने सुना है या पढ़ा है? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। गांधी जी। तो गांधी ने भी ये कहीं से लिया था। टू बी वेरी फ्रैंक, ये 17th सेंचुरी की बात है जो जापान में एक श्राइन पे लिखी हुई है। तो अगर कभी उन्होंने शायद मौका पड़ा उनका एंड ही वेंट देयर एंड ही माइट हैव सीन इट एंड ही मेड हिज तकिया कलाम। इंडिया में बहुत फेमस है ये लाइन, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत क्या बोलो। इट्स गांधी के बंदर तीन करके, इट्स क्वाइट फेमस। तो ये आप भी सोच लीजिए कि इतनी पुरानी बातें हैं, इतनी पुरानी बातें हैं कि हम इसे अपना रहे हैं, हमें इसके सोर्स भी नहीं पता होता है। हमें सोर्स भी नहीं पता होता है, लेकिन हम ऐसे अपने लाइफ में अपना लेते हैं क्योंकि कोई बहुत फेमस पर्सन या कोई बहुत फेमस उसे कोट के रूप में हमें दे के चला जाता है। तो पॉइंट इज नॉट कि किसने दिया कैसे दिया, पॉइंट इज कि आपको बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना है और बुरा नहीं बोलना है। ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी लाइन है। इसे अपने जीवन में उतार लो एंड probably you will end up becoming the next Gandhi of the nation. Probably. पक्का नहीं बोल सकती, लेकिन हो सकता है कि आप बन जाओ। तो यस, यू शुड डू दिस। यहाँ पूरा बुक में हम यही सुनते आ रहे हैं कि हमें बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं देखना है, देखो भी तो घूम जाओ, ऐसा ये बुक बोल रही है। एंड बुरा नहीं सुनना है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी पे अत्याचार हो रहा है और आप उस पे घूम जाओ। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। तो हाँ, मैंने अपना पॉइंट रखा है। द बुक इज सेइंग कि यू शुड नॉट सी एनीथिंग बैड हैपनिंग अराउंड यू, यू शुड क्लोज योर आईज। आई कांट डू दैट। अगर कुछ हो मिनाल रहा जी, है, अगर इफ यू आर सिटिंग इन ग्रुप ऑफ पीपल एंड वहां पे कुछ बात ऐसी नेगेटिविटी हो रही है, तो वहां से हाउ कैन यू जस्ट गेट अप एंड कि यू नो हमको नहीं सुनना है? तो समटाइम्स कहीं कहीं जगह पे थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं होता है ना। टिपिंग पॉइंट है ना उसके लिए, जहाँ प्रैक्टिकल नहीं है वहां पे सुन लीजिए, रिएक्ट मत करिए, बोलिए मत वहां पे बुरा। इफ यू आर हियरिंग ऑल्सो इट्स ओके। बट जैसे अब मैं अगर कहीं बैठी हूँ और पॉलिटिक्स के बारे में ऐसा होता है ना, हम घर पे बैठे और डिस्कशन स्टार्ट हो गया, अब मेरे हस्बैंड को और मेरे जेठी को तो नहीं पता है ना कि नहीं करना चाहिए, मुझे पता है। अब वो लोग मुझे कितना भी बोल ले, मैं अब जवाब नहीं देती हूँ आजकल वापस।
I don't indulge in political talks nowadays. तो ये आपने सुना, मैं सुन रही हूँ सब वो जो बोल रहे हैं। मेरे मन में भी कभी कभी विचार आ जाते हैं कि यार क्यों इतना बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, खुद का बिजनेस देखो ना, उसके बारे में बात करो। मेरे मन में इच्छा हो जाती है कभी कभी ये बात बोलने की, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। अगर मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ तो इट इज ओके, आई सिट देयर बट आई डोंट गिव माई आंसर्स। पहले देती थी, पहले बहुत फटाफट देती थी, लेकिन आजकल नहीं देती। तो आप बोलो मत, आप इंडल्ज मत करो अपने आप को, आप बातें मत करो, आप सुन लिए, ठीक है, आपके पास में कोई उपाय नहीं है, आपको सुनना पड़ेगा। अब आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में भी बातें होती है हमारे, तो हम जब साथ में जाते हैं तो द कार इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस फॉर पीपल टू टॉक। दे मतलब रिमेम्बर एवरीथिंग उस समय पे, कि क्या नहीं, हाँ है नो तेनो, सारी बातें याद आ जाती है उस समय। तो अब आप कहाँ जाओगे, गाड़ी से तो बाहर मैं कूद भी नहीं सकती हूँ, जा भी नहीं सकती। तो मैं अपनी दुनिया में चली जाती हूँ। आई डोंट हैव टू बी प्रेजेंट, इट टेक्स प्रैक्टिस, दैट इज व्हाई वी हैव टू स्टे। मुझे भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, अभी भी कभी कभी निकल भी जाता है मुझसे, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट पूरा सती सावित्री काइंड ऑफ पर्सन। अभी भी कहीं कहीं से बाहर आ जाता है। एक बार तो मुझे याद है, सुनीता दीदी मस्ट बी ऑनलाइन, अभी मैंने देखा था उन्हें, हम संस्कृति की मीटिंग पे थे एंड पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, एंड मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने आप को, बहुत कंट्रोल किया। उसके बाद मेरे से हुआ नहीं और मैंने दो चार बोल दिया। तो मेरे को स्मिता दीदी ने वार्निंग दी थी, इशू किया था उन्होंने कि मृणाल बस कर अब, बिकॉज शी नोज अबाउट दिस पावर बुक एंड शी न्यू कि ये क्या। तो मैंने उनको मजे से बोला था, हाँ मैं टिपिंग पॉइंट फॉलो कर रही हूँ, थोड़ा बहुत मैं बोल सकती हूँ, मैंने अपने स्ट्रक्चर बना के रखे हैं एंड मैं 51% अबव द लाइन हूँ। तो दैट वाज अ जोक, इट वाज अ डिफ्यूजन काइंड ऑफ थिंग, एंड मैंने बोल के उस समय चुप हो गया। लेकिन जो आपके साथ रहते हैं, जिन्हें पता है, they also, you know, they also keep you in check half of the time. They help a lot. That is why we need those kind of people around us also. They give you the push. तो उन्होंने मुझे वार्निंग इशू की थी उस समय, बाकायदा उन्होंने मुझे बोला था कि हो गया बस है, because I Magic know, buddy. yes, magic buddy, you can call them magic buddy also. तो जो भी है, there are circumstances who will take you out of that thing, but you should be ready for it. You should know what you are doing. अगर आप सोच समझ के कर रहे हो ना, तो it is easy to come out of it. अगर आप बहते जा रहे हो तो it becomes a little difficult. So you have to train yourself for that. Instead of say yes, Bela ji, continue. Achha, okay. Instead, say yes when you see something you love. Say yes when you hear something you love. Say yes when you taste something you love. Say yes when you smell something you love. Say yes when you touch something you love. It doesn't matter if you have it or not. Say yes to it because then you are choosing it by giving love. तो यहाँ पे इतना सारा चीज है, आपको हर चीज में हाँ बोलना है, उन चीजों को जो आपको पसंद है। आपने किसी चीज को छुआ, अब जैसे अगर आपको यू लाइक सिल्क का कपड़ा और वेलवेट का कपड़ा, आप उसे टच किया तो वाव करिए, मतलब यू से लाइक दोस पावर वर्ड्स यूज करिए, वाव इट्स सो नाइस, द फीलिंग इज सो नाइस। अगर आपको गुलाब पसंद है तो आपने गुलाब को छुआ या गुलाब को सूंघा, तो बी ग्रेटफुल, बी गिव लव टू द फ्लावर। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गुलाब को पसंद करते हो तो आप बोलोगे कि ट्यूलिप्स तो बेकार फ्लावर्स है, कैसे होते हैं, इसमें तो सुगंध ही नहीं होती। आई डोंट नो, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ट्यूलिप्स में सुगंध होते हैं कि नहीं होते मुझे नहीं पता, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। और लेट अस टेक रजनीगंधा एंड गुलाब। अब मुझे गुलाब बहुत पसंद है, मैं पहले कल ही मैंने बोला कि आई लव रेड रोजेस, तो मुझे गुलाब बहुत पसंद है, उसकी सुगंध बहुत पसंद है, लेकिन रजनीगंधा की स्मेल मुझे पसंद नहीं है, वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं गुलाब को अप्रिशिएट करते करते रजनीगंधा के बारे में बुरा बोलना शुरू कर दूं। आई स्टॉप मतलब उसके बारे में कि कैसे फ्लावर्स होते हैं, लंबी लंबे स्टिक्स जैसे होते हैं, कहाँ कहाँ से ऐसे निकलते हैं, खिलते भी नहीं है बराबर से, कितने दिन तक पड़े रहते हैं पानी में, उसके बाद में एक दो बल्ब ऊपर का खुलता है। देयर आर सो मेनी नेगेटिव थिंग्स आई कैन से। तो क्यों बोल रहा है मुझे गुलाब पसंद है, गुलाब पे कॉन्सेंट्रेट करिए। से यस टू द थिंग्स विच आई लव। जो मुझे पसंद नहीं है उनके बारे में मुझे बात ही नहीं करना है। अगर मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकती हूँ तो मुझे बात नहीं करना, और अगर मैं अप्रिशिएट कर सकती हूँ तो हर फ्लावर इज इम्पोर्टेंट अपनी जगह पर। तो आई कैन से कि यस, आई लव ऑल द फ्लावर्स, दे हैव देयर ओन ब्यूटी, बट माय मोस्ट फेवरेट इज रोजेस। तो आई कैन से दैट ऑल्सो। तो आई हैव टू डिसाइड हाउ आई एम फ्रेमिंग माई वर्ड्स, मेरी सोच कैसी हो रही है, मेरा
मेरे बोल कैसे निकल रहे हैं मुंह से। एक गीता में भी यही बोला जाता है, सोच समझ के बोलिए, आप जो बोल रहे हो वो तथास्तु होता रहता है। एंड आप जितने भी हमारे पुराने ग्रंथ पढ़ोगे उन सब में भी यही बातें आती है जो पावर बुक में है। और अगर आप अपने बड़े बुजुर्ग से मिलोगे, बैठ के उनसे बातें करोगे, तो वो भी यही बात बोलेगा। कल मैं अपने आई वाज सिटिंग विद माय मदर इन लॉ एंड शी वाज लिसनिंग टू सम प्रवचन ऑन यूट्यूब। एंड उसमें उन्होंने जो जो प्रवचन दे रहे थे, यदुनाथ जी महाराष्ट्री, या मुझे नाम ठीक से याद नहीं है उनका भी, तो उन्होंने क्या बोला कि आप पूरी जिंदगी कमाई करते हो, कमाई क्यों, क्या सोच के करते हो आप पूरी जिंदगी ये कमाई करके सेव करते हो कि वो कभी ना कभी आपके दुख में काम आएगा। तो व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग इज पेन, दुख। उन्होंने कल बोला है उसमें कि आई डोंट नो इफ ही इज डूइंग पावर बुक और मैजिक बुक, आई डोंट नो कि वो कर रहे हैं क्या ये चीज को, पावर बुक या मैजिक बुक उन्होंने पढ़ी है क्या, या वो जानते हैं क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मेरी आंखें ऐसी हो गई थी उस समय। व्हाट ही इज सेइंग, मुझे समझ में आ रहा था कल उनकी बात मुझे एक्चुअली समझ में आई, नहीं तो मैं भाग जाती हूँ वहां से कि ये सब मुझे नहीं सुनना है अभी, दिस इज नॉट फॉर मी। लेकिन कल जब उन्होंने ये बात बोली कि आप पूरी जिंदगी कमाई करते हो ये सोचकर कि आपके दुख के समय में ये कमाई काम आएगी, तो यहाँ पे आपने गलती कर दी, यहीं पे आपने सबसे बड़ी गलती कमिट कर दी है कि जब आप ये सोच रहे हो कि मेरे दुख में काम आएगा, तो आप तो दुख को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पास में। इनकी लैंग्वेज ये नहीं थी जो मेरी लैंग्वेज है, बट उनका मतलब यही था कि आप दुख को अट्रैक्ट करो। ही वाज सेइंग इट इन अ ठेठ गुजराती एंड हिंदी वाला वो मिक्सचर वाला लैंग्वेज जो ब्रज भाषा टाइप की। बट आई वाज शॉक्ड, माय आईज ओपनड अप कि हर व्यक्ति जो भी जिस उस पोजीशन पे है, यू नो, दैट पोजीशन, दैट हाइट, दैट हीरो वाला पोजीशन पे है, वो ऐसी ही बातें करता है, हम समझ नहीं पाते हैं। मैजिक एंड पावर ने, आई एम ग्रेटफुल टू रोंडा बॉर्न, मैजिक एंड पावर ने इसे इतना आसान बना दिया है, हम जैसे इंसानों को भी ये चीज समझ में आ रही है। अगर ये भक्ति भाव के हिसाब से मैं जाती तो आई वुड हैव नॉट रेडीली एग्रीड टू इट। आई वुड बी कि मेरा अभी टाइम नहीं आया है इस चीज में आने का, मैं नहीं आऊंगी, मैं अभी इतना करती हूँ बस है। ये मेरा हर वक्त का तकिया कलाम रहता है कि मैं इतना सेवा करती हूँ भगवान का, बस है, अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है कि मैं ज्यादा इस पे लगूं। तो बट जो कल उन्होंने जो ये बात बोली, मुझे मतलब आई वॉज एनलाइटेड, आई कुड से दैट। तो yes, say yes to the things you want, don't worry about the things which are you don't want, leave them, let them go. Yes, there are no limits. Uh, in, there are no limits, and everything is possible if you really want it, if you really desire it. There is no lack anywhere in the universe. When people see a lack of anything, it's simply a lack of love. There isn't a lack of health, money, resources, or happiness. The supply is equal to the demand. Give love, and you will receive love. तो यहाँ पे ना एक ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप हो दुनिया में तो आपका लाइफ पार्टनर भी है दुनिया में। ओके, ऐसा नहीं है कि भगवान ने एक आदमी बना के 10 औरतें बना दी है हर आदमी के लिए, ऐसा नहीं है। या एक औरत बना के 10 आदमी बना दिया, ऐसा नहीं है। ये जो हम मूवीज में गाना सुनते हैं ना, एक है अनार यहाँ कितने बीमार यहाँ, ये सब ये सब खाली गाने के हिसाब से और मूवीज के हिसाब से बनते हैं। तो देयर इज बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी इज टेल इज कि देयर इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बेला जी के पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि वो रीड करे और रुचिका जी के पास में नहीं है अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी थी। अब उन्होंने कैसे किस तरीके से अट्रैक्ट किया अपनी तरफ में, वो उनका लव है, उनका प्यार है। उन्होंने पहले बोला, उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया। रुचिका जी, नो ऑफेंस, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग द फैक्ट एज इट इज। तो ये ऐसे ही है कि हाँ कुछ कमी नहीं है। देयर व्हेन पीपल सी अ लैक ऑफ एनीथिंग, इट इज सिंपली अ लैक ऑफ लव। तो ये जो आप सोच रहे हो कि यार मुझे 20 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे पास कैसे आएंगे, अंबानी के पास ऑलरेडी है इतने सारे रुपए, टाटा के पास है, तो मुझे यूनिवर्स कैसे देगा, यहीं पे हम मात खा जाते हैं। आपको क्या करना है, अंबानी के पास है या टाटा के पास नहीं है से आपको चाहिए, आप यूनिवर्स को अपनी ड्रीम लिखो, आप यूनिवर्स को समझाओ, आप यूनिवर्स को भेजो अपनी ड्रीम, और वो पूरी करेगा। आपको 20 करोड़ क्या, वो 40 करोड़ भी दे सकता है, बशर्ते कि आप चाहो तो सही पहले। और आपके चाहने के बाद में आप उसमें कितना प्यार डालते हो वो भी यूनिवर्स देखता है। चाहने से कुछ नहीं होता है, देन यू हैव टू स्टार्ट गिविंग इट लव। और टाटा अंबानी के पैसों से आपको जलन नहीं रखना है, ये भी बात है।
there are so many things which you have to take into consideration. So simply put, the supply is equal to the demand. Simple economics है. Supply है तो डिमांड है तो सप्लाई भी है. सप्लाई में कोई कमी नहीं रखता है यूनिवर्स, बट आप डिमांड तो करो और बराबर ढंग से करो, एंड देन गिव लव एंड यू विल रिसीव इट. इट्स योर लाइफ, योर स्टोरी. Your life, हम your ऑलरेडी life. Sorry. हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिख रहे हैं. हम अपने लाइफ की पिक्चर खुद बना रहे हैं. कैसी बनानी है वो हम थोड़े दिन पहले ही वी हैव सीन कि किस तरीके का हमारी लाइफ स्टोरी होनी चाहिए, हमारे ऊपर है. So now what more they want to say, we will see that. Yes. Your life, your story. You are creating the story of your life. So what story are you telling about yourself? Do you believe there are things you can and cannot do? Is that the story you are telling about yourself? Because that story is not true. Continue. Don't listen if someone says you are less than anyone else. Don't listen if someone says you are limited in any way. Don't listen if someone says you can't do what you love to do and earn a living from it. Don't listen if someone says you are not as valuable and worthy as the greatest human being who have lived. Don't listen if someone says you are not good enough now and you have to prove yourself in life. Don't listen if someone says you can't have what you love or do what you love or be what you love. If you believe it, you put limits on yourself. But more importantly, it's not true. There is not a single thing that is too good for you or too good to be true. हमारे ना जब से हम पैदा होते हैं ना, हमारे कुछ बिलीव्स हो जाते हैं. हमारे पेरेंट्स बना देते हैं या हम खुद बना लेते हैं या हम देखते देखते आसपास में उसे क्रिएट कर लेते हैं. तो ये जो बिलीव्स होते हैं ना, दे आर द डाउनफॉल. दे ब्रिंग अस डाउन कि मैं तो कभी अच्छा गाना गा ही नहीं सकती. दिस इज वन ऑफ माय बिलीफ. It's still there, but now I've understood कि because I don't have love for that singing part, इसके लिए मैं नहीं गा पाती हूँ. It's not कि मैं गा नहीं सकती हूँ. अगर मैं थोड़ा सा उस पे रियाज करूँ या प्रैक्टिस करूँ तो obviously I can do it well. I can sing well, very well also. But I am off beat, I am off tune, and I simply don't love singing. Main thing is कि मुझे सिंगिंग से प्यार नहीं है. मेरे अंदर में सिंगिंग के लिए प्यार नहीं है, इसके लिए I cannot sing. मुझे ड्राइंग से प्यार है, इसके लिए I do drawings. मुझे dancing अच्छा लगता है, इसलिए I'm not a perfect dancer. I'm not a very good dancer also, but by practice, because I love dancing, I like dancing. I practice, I take help from others. I even go for dance instructors and I do it. I do it because simply put, I love dancing. I don't love singing. इसके लिए मुझे singing मेरे से नहीं होती है. तो ये जो यहाँ पे आपकी जो limitations है आपके अंदर में बना दिया गया है, तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम हिंदी नहीं बोल पाती हो अच्छा, सॉरी इंग्लिश नहीं बोल पाती हो अच्छा, तो तुम कैसे कोई स्पीच दोगी किसी भी जगह जाकर, तुम कैसे किसी से बात कर पाओगी, बिकॉज ये सारे बिलीव्स हमारे अंदर डाले हुए हैं. एंड इसे हमें बाहर निकलना है. ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते. इफ वी पुट आवर माइंड टू इट, इफ वी गिव इनफ लव टू इट. दिस द होल पैराग्राफ मीन्स दिस ओनली. आप अपनी खामियां को मत ढूंढिए. आपके अंदर कमियां जो है उन्हें आप ओवरकम कर सकते हो. जस्ट यू हैव टू गिव लव टू इट. जस्ट यू हैव टू गिव लव टू इट. तो यहाँ पे मिरर प्रैक्टिस में वी डू दैट. लेकिन ये पावर एंड यू जब आएगा, देन आई विल एक्सप्लेन इट मोर, कि आपको अपने आप को हमेशा ये बोलना है, आई एम परफेक्ट द वे आई एम एंड आई एम परफेक्ट द वे आई एम नॉट. हमेशा मिरर में आंख डाल के वी शुड से दिस टू आवरसेल्व्स. मिरर में जस्ट अ सेकंड. जब आप मिरर में आंख डाल के नहीं बोल पाए ये वर्ड्स, अब आप समझ जाइएगा कि कोई चीज है जो आपको कचोट रही है, कोई चीज है जो आपके कॉन्साइंस को बार बार याद दिला रही है कि आपने कुछ गलत किया है. ये बेस्ट वे है अपने आप को समझने का. मिरर पे जाओ, मिरर में आंख डाल के अपने आप को कुछ बोलो और आपको पता चल जाएगा. जहां आपकी आंख अपने आंख से हटी, वहां समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है, एंड देन वर्क ऑन इट.
ये मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, ये मैं करती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे पता है इट्स अ शॉर्ट फॉर्मूला। तो ये जो भी आपकी स्टोरी चल रही है, आपकी लाइफ चल रही है, तो आपको उसमें किसी और को कोई हक नहीं है आपको बताने का कि तुम ये काम कर सकती हो, तुम ये काम नहीं कर सकती हो। तुम गाड़ी चला सकती हो, तुम गाड़ी ठीक से नहीं चलाती हो, कोई नहीं है बोलने वाला। यू आर योर जज। तुम पार्किंग नहीं कर पा रही हो, क्यों नहीं कर पा रही हो? तुमने सीखा नहीं पार्किंग करना। अरे मुझे सीखना होगा, मैं सीख जाऊंगी। अब मुझे ही नहीं करना है, अगर मेरे अंदर से ही आवाज नहीं आ रही है कि मृणाल यू शुड लर्न पार्किंग, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि मुझे गाड़ी चला के कहीं ले जाना ही नहीं है, मुझे गाड़ी चलाना अच्छा ही नहीं लगता है। दिस इज अ फैक्ट ऑफ माई लाइफ, आई डोंट लाइक ड्राइविंग। तो अब मुझे कितना भी कोई प्रेशर डाले, माई हस्बैंड पुट्स लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी, उनके कारण ही मैंने गाड़ी चलानी सीखी है, लेकिन उतना ही चलाती हूँ जितना मेरे को जरूरत है। आसपास का काम कर लिया, हो गया काम, राघव को स्कूल छोड़ दिया, राघव को स्कूल से ले आया, राघव को उसकी क्लासेस पहुंचा दिया, बस। अब उसके बाद में आप मुझे बोलोगे गाड़ी चला के ये कर लो वो कर लो, मेरे से नहीं होता है, तो मुझे ये मेरे लिए एक कवर है। जब सामने वाला बोलता है कि इसे गाड़ी चलाना नहीं, इसे गाड़ी चलानी नहीं आती ठीक से, आई एम हैप्पी इन इट। विल यू बिलीव इट, आई एम हैप्पी इन इट। मुझे अच्छा लगता है जब कोई बोलता है कि इसे गाड़ी चलाना नहीं आता है, इसे गाड़ी चलाना अच्छा नहीं लगता है, तो आई एम हैप्पी, बिकॉज मुझे वो काम करना ही अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लव डूइंग दैट थिंग। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब सामने वाला मुझे ऐसे बोलता है, बिकॉज आई that's my way to escape from driving, and people don't understand. They have put a level on me and I'm happy with that level because I don't like it. लेकिन ऐसा ही अगर आप गाड़ी चलाते हो और बहुत अच्छी चलाना चाहते हो and people keep saying you कि नहीं तुम तो चला ही नहीं पाओगी, तुमसे नहीं होगा, it's not your job, so you can break that norms by giving love to that driving thing, and it will happen. You will be driving the car at the speed you want, wherever you want. तो ये सब जो मेरी लाइफ में हो रहा है मेरे साथ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो फैक्ट्स है आप उसे कुछ भी करके चेंज कर सकते हो। मुझे लगा था कि मैं ये सेशंस नहीं कर पाऊंगी, बट आई गिव लव टू डू सेशंस सो मच दैट आई एम डूइंग इट। माय जिम हैज आल्सो ओपन। यहाँ पे जो मेरे पुराने मैजिक बुक से है, दे नो कि मुझे जिम जाना था, इसी के लिए मैंने ये सेशंस नहीं किए थे एंड लॉकडाउन का वेट कर रही थी। जिम कल से खुल गया है एंड आई हैव बीन देयर आल्सो। मैं 11 बजे के स्लॉट में वहां पे जाके आई हूँ एंड 15-20 दिन तक मैं ऐसे ही करूंगी, उसके बाद आई विल शिफ्ट। तो जब आप कुछ चाहते हो ना, यूनिवर्स आपको वे दे देता है। नाउ आई लव एक्सरसाइजिंग ऑल्सो एंड आई लव माई सेशंस ऑल्सो। तो यूनिवर्स ने मेरे लिए वे अपने आप निकाल दिया कि भाई तू बॉस, तू थोड़े दिन ऐसे चली जा, क्या होगा तेरा, ऐसे भी घर में बैठी रहती है खाली टाइम तेरे पास में। तो इट इज ऑल योर इनहिबिशंस जो आपको ब्रेक करना है। कोई और के बोलने से, किसी और के कुछ करने से आपका कुछ नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको अपने मन की सुननी है, अपने मन की करनी है, एंड यू कैन डू इट। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इफ यू वांट टू डू इट। The point is you should want it, you should love it, and then you can do it. You can become whatever you want, you can have whatever you want, and you can do whatever you want if you love it enough. Yes, the force of love says, The force of love says, whatever you give, you receive back. Does that say you are not good enough? The force of love says, give love for whatever you want to be, do, or have, and you will receive it. Does that say you are not good enough? You are worthy and deserving just as you are. You are good enough now. If you feel you have done something that wasn't right, understand that your realization and acceptance of its absolution for the law of attraction. इसमें ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप महसूस कर रहे हो कि आपने कुछ सही नहीं किया है, तो आपकी जो वो अंडरस्टैंडिंग है, जो आप रियलाइज कर लिए और जो उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने कुछ सही नहीं किया है, उसी से यूनिवर्स आपको फॉरगिव कर देता है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हमने अपनी अपने मम्मी, मतलब लाइक ओके, टेक फॉर एग्जांपल माय मदर इन लॉ एंड मी। तो मेरा कुछ उनके साथ इश्यूज हुआ एंड ब्रेकडाउन्स हुए एंड आई नो कि आई वाज एट फॉल्ट, राइट। तो अब जो मेरा लाइफ सर्कल चल रहा है उसमें मुझे पता है कि मैंने गलती की है, मैंने ग्रैटिट्यूड सीखी है, मैंने उनके लिए अपने आप से अपने आप को माफ कर दिया और उनको सॉरी बोला या नहीं बोला फेस टू फेस। अगर उनको सॉरी बोल दिया तो बहुत अच्छा है, अगर उनको नहीं भी बोला तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया अपने अंदर में कि मेरी गलती थी, आई वॉज रॉन्ग, आई शुड नॉट हैव डन दैट, एंड प्लीज मुझे यूनिवर्स माफ कर दो या मदर इन लॉ माफ कर दो। तो वहां पे आपने जब रियलाइज कर लिया ये चीज को, तो वहां पे यूनिवर्स ने आपको एब्सोल्यूट माफी दे दी है।
अब वो आपको उस चीज के लिए ग्रज नहीं रखेगा। आपने अपने ग्रेटिट्यूड भी लिख लिया, आप बराबर आ गए हो, यूनिवर्स आगे बढ़ जाएगा ना। आपकी मदर इन लॉ ने आपको माफ किया या नहीं किया, वो उनका लुकआउट है, वो उनका लुकआउट है, उनके लाइफ सर्कल में वो घूम रहा है। आपका लाइफ सर्कल इज नाउ क्लियर, यू कैन मूव फॉरवर्ड। यहीं पे वी टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये पार्ट जो यहाँ पे आता है ना, ये पार्ट के लिए वो फॉरगिव मी एंड आई एम सॉरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पार्ट पे अगेन आई विल से जस्ट एक्सेप्ट इट। अगर आप किसी को नहीं भी बोल रहे हो, पास्ट मिस्टेक्स आपके बहुत सारे हुए हैं, उनके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, ये अगेन आपको वहां लेके जा रहा है, ये उस चैप्टर से रिलेटेड हो जाता है जहाँ पे आप पास्ट मिस्टेक्स के लिए यू राइट ग्रेटिट्यूड्स एंड मैजिक बुक। दिस इज समथिंग ऑफ दैट लेवल, यहाँ पे आप वो चीज कर रहे हो। तो आपने अगर सॉरी बोल दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। पहली बात होती है एक्सेप्टेंस। जब तक आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगा कि आपने गलती की, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, एंड व्हेन यू एक्सेप्ट द फैक्ट, व्हेन यू रियलाइज दैट यस यू वर रॉन्ग, आधा से ज्यादा क्या 99% काम वहीं पे हो जाता है, वहीं पे हो जाता है। एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग ग्रेटिट्यूड, एंड देन यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, एंड देन यू गेट द एब्सोल्यूशंस फ्रॉम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके बाद में आपको रिस्पॉन्सिबल हेल्प नहीं करता है, वो खुला छूट दे देता है आपको आपके ड्रीम्स की तरफ जाने के लिए। तो ये पूरा चीज हमें वही बता रहा है कि don't believe, don't limit your beliefs, don't stop yourself from doing something which you consider that you are not good enough, because there's nothing which you are not capable of doing. You can do everything and anything you want to do, you love to do. No one can stop you from doing it. Yes, ये यहाँ पे ये पैराग्राफ खत्म हो गया। Now we come to the real world. चलिए, we will start this because we have time. 10 मिनट है अभी भी, चलिए। The real world. In the beginning, there were only probabilities. The universe could only come into existence if someone observed it. It does not matter that the observers turned up several billion years later. The universe exists because we are aware of it. Martin, Yes, Martin Rees, 1942, astrophysicist. physicist. अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में, इस रियल वर्ल्ड में हम जो भी बात करेंगे वो क्वांटम फिजिक्स से और फिजिक्स से रिलेटेड होगी। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया, ऑब्वियसली आई एम अ हाउस वाइफ, मैं कोई साइंटिस्ट या कोई बहुत बड़ी 30 मार खान नहीं हूँ इस फील्ड में। जो मेरा नॉलेज है वो लिमिटेड है, वो सुनकर, आश्विन मैम से सुनकर या किसी से, प्रिया से या सुवर्णा से डिस्कस करके ही मेरे पास आया है नॉलेज। तो प्लीज डोंट हेल्ड मी रिस्पॉन्सिबल अगर कुछ ऊपर नीचे डिस्कशन हो जाता है, तो वी विल कीप इट टू द मिनिमम। जितना हमको समझने के लिए जरूरत है, वी विल जस्ट डिस्कस दैट पार्ट, बिकॉज ये रियल वर्ल्ड पूरा फिजिक्स से भरा हुआ है, पूरा क्वांटम फिजिक्स से भरा हुआ है। यहाँ पे बिगनिंग में ये क्या बोल रहे हैं कि यूनिवर्स वॉज ऑलरेडी देयर, इसका एग्जिस्टेंस बहुत पहले से था। लोग उस पर बहुत साल बाद, बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में वहां पे लाइफ आया। कि आपको भी पता है बायो से कि लाइफ कैसे फॉर्म हुई थी। लाइफ पहले वाटर में फॉर्म हुई थी, वाटर से वो धरती पे आई, धरती से वो इवॉल्व होते 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 बंदरों से फिर ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं। वी ऑल नो दैट फैक्ट। उसके लिए अगर आपको डिटेल में जाना है तो यू कैन गो एंड लुक अप ऑन टू द गूगल। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसे कोई ऑब्जर्व करने वाला ही नहीं था। सन पहले से है, अर्थ पहले से है, मून पहले से है, स्टार्स पहले से है, वाटर का H2O का वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनता है, वो फैक्ट भी पहले से ही है। वो कोई ऑब्जर्व करने के बाद नहीं आया है, वो पहले से था। उसके बाद में जब ह्यूमंस आए एंड दे स्टार्टेड रीडिस्कवरिंग थिंग्स, दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग थिंग्स, दे स्टार्टेड इन्वेंटिंग, मतलब वो सब चीज थे, बट वो उन्होंने स्टार्ट किया उन सबको ऑब्जर्व करना, एंड देन दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट देम। मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, एक डायरी जैसा बना, मतलब एक फैक्ट्स को इकट्ठा करने के लिए कुछ होता है ना, नोट्स बनाते हैं, तो वो सारा चीज उन्होंने ह्यूमंस ने बनाना शुरू किया। फायर को इन्वेंट किया, फायर था पहले से,
लेकिन फायर को उन्होंने खोजा कि अच्छा इसको इससे मिलाने से, रब करने से 2 स्टोन को फायर आ जाएगा, देन दे कैन कुक देयर मीट. They discovered that they can cook their meat and they can have it. So all these were observed by humans when they come down. Several billions years later, यूनिवर्स के बनने के बाद, अर्थ पे बनने के बाद में, लाइफ शुरू होने के बाद में, जब तक में ह्यूमंस ने उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब तक several billions years हो चुके थे. They had been there for several billion years and then humans started observing them. तो आपको अवेयरनेस कब आती है? जब आप उसे ऑब्जर्व करते हो तब आती है. ऐसा ही आगे आएगा शायद ऑब्जर्वर इफेक्ट, एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट. बट ये होता क्या है कि जब हम हमारे को कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है तो हम अपना 100% देते हैं. ये भी एक फैक्ट होती है. चलिए अब आगे देखते हैं व्हाट द रियल वर्ल्ड इज टेलिंग अस. आई वांट टू टेक यू बिहाइंड द सीन. I want to take you behind the scenes of the world you see, because much of what you see is not as real as you may think it is. A few adventurous steps into the invisible will change the way you look at the world, and it will set you free to receive an unlimited life. what the book is telling us is कि हमको आसपास की दुनिया में भी हमारे इनविजिबल रियल्म्स चल रहे हैं, और अगर हम उसमें स्टेप करते हैं तो अब हमें पता चलता है कि रियलिटी में हमारे पास में क्या हो रहा है. वो आपको वर्ल्ड के बिहाइंड द सीन्स ले जाना चाहती है. जैसे कि हम जब कोई नाटक करते हैं, कोई प्ले करते हैं, तो प्ले में हमेशा बिहाइंड द सीन्स कुछ ना कुछ चलता रहता है. कोई ड्रेसअप चलता रहता है, किसी का प्रॉम्प्टिंग चलता रहता है, किसी के डायलॉग्स लर्न चलते रहते हैं, किसी का वार्डरोब मॉल फंक्शन हो जाता है, उसे ठीक करते रहते हैं. तो ये सब बिहाइंड द सीन्स चलते रहते हैं. तो जो आप देख रहे हो स्टेज पे, दैट इज नॉट रियल. ये हमें ये बताना चाह रही है कि जो भी आप हमारे आसपास देख रहे हो, दैट इज नॉट रियल. इसके अलावा भी एक दुनिया है जहाँ पे वैसा ही सब कुछ हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है, और उसकी 110 पॉसिबिलिटीज होती है कि ये ऐसे हो सकता है या वैसे हो सकता है. Has anyone seen Doctor Strange यहाँ पे? और they are Avengers Endgame से कोई वाकिफ है यहाँ पर? They have seen that movie Avengers Endgame. और डॉक्टर स्ट्रेंज को आप लोग जानते हो कोई भी? Yes, I know. Yes. Dr. Strange. तो आपने देखा कि कैसे उन्होंने जब उनको बोला जाता है तो कैसे वो सारी आंखें बंद करके सारी पॉसिबिलिटीज सोच लेते हैं आउटकम का, कि थैनोस को अगर मारेंगे या उसे कैसे मार पाएंगे. वो अपनी आंखें बंद करते हैं एवेंजर्स में, एंड ही थिंक्स ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज, एंड देन ही सेज कि आई हैव टू डाई फॉर द यूनिवर्स टू सर्वाइव, फॉर द वर्ल्ड टू सर्वाइव. दिस वाज हिज आउटकम, कि वो क्लियरली बोल देते हैं कि मैं नहीं रह सकता हूँ, एक ही पॉसिबल आउटकम है इसका और उसमें मैं नहीं हूँ, तो आई हैव टू सैक्रिफाइस माई सेल्फ. तो वैसे ही दे आर 100 पॉसिबिलिटीज. आप कैसे चूज क्या करते हो, सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी पॉसिबिलिटी को अपना रहे हो अपने पास में. There are movies which delve into this. This is again quantum physics. ये quantum physics ही होता है जो आपको इधर उधर सब जगह लेके जाता है और आपको बताता है. There are serials also. मैंने अभी एक कोरियन ड्रामा देखा था जिसमें जो circumstances आपके इस लाइफ में है, there's a portal which opens into another world जो simultaneously आपके साथ चल रहा है. आप यहाँ पे चल रहे हो, वो वर्ल्ड कहीं और चल रहा है, एंड आप उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आ रहे हो, जा रहे हो. इट इज ऑल बियॉन्ड अस टू अंडरस्टैंड. जस्ट रिमेंबर दैट अगर आप कोई चूज किए हो कोई चीज को, तो उसकी 110 पॉसिबिलिटीज होगी कि वो आउटकम आपको कैसा देगा. अब आगे बढ़ते 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 आप आउटकम डिसाइड अपने आप अपने लिए करते हो. That decision is yours, what you will decide as the outcome. A few adventurous steps into the invisible will change the way you look at the world, and it will set you free to receive an unlimited life. जो हमारी सोच लिमिटेड होती है तो हम अपने आप को पॉसिबिलिटीज में इमेजिन नहीं कर पाते. मेरी इमेजिन कहाँ तक सीमित थी कि मेरी शादी हो गई है, नाउ आई एम अ हाउसवाइफ एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग मोर अबाउट इट. दिस इज माई इमेजिनेशन. आई हैव लिमिटेड माई इमेजिनेशन टू इट. अब जैसे मैंने ये सेशन स्टार्ट किए हैं तो ये थोड़ा सा वन स्टेप अहेड मैं गई हूँ, अपने हाउसवाइफ की ड्यूटी से बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रही हूँ. ऐसे ही अब ये पॉसिबिलिटी मेरे लिए और क्या अपॉर्चुनिटीज खोलेगी, ये मुझे अब देखना है. एंड आई हैव टू ट्राई ऑल्सो. आई हैव टू गिव माई बेस्ट टू इट,
कि मैं कुछ और करूं, कुछ और अगर मेरे अंदर में वो आग होगी तो आई विल एंड अप डूइंग समथिंग मोर अदर देन गिविंग दिस सेशंस। तो ये ऐसे ही हमें वी हैव टू सी कि हर पॉसिबिलिटीज को हमको ध्यान में रखते हुए वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, कि कुछ भी हो सकता है बॉस, यहाँ पे ये खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे ये आपका लाइफ का द एंड नहीं है। यू जब तक आपकी सांसें हैं, आप धरती पे हो, तब तक आपके लिए अनगिनत पॉसिबिलिटी है। जैसे कि अगर आप ये सोचते हो कि हमारा सन इकलौता संसार सन है यूनिवर्स में और हमारे अर्थ पे ही सिर्फ लाइफ है, तो अगेन ये आपकी सोच की लिमिटेशन है। हमको पता चल चुका है कि देयर आर मेनी मिल्की वेज इन द यूनिवर्स, सबके पास अपना अपना सन होता है, सबके ऑर्बिट्स में उनके उनके प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, एंड वन सच ऑर्बिट इज आवर्स। We have one life on one planet, that is Earth, from our 9 planets. अभी शायद 10 हो गया है, शायद मुझे पता नहीं कितने planets है अभी, बट मैं जब पढ़ती थी तब 9 था। तो वैसे ही बाकी जगह भी देयर इज वन सन अगेन, एंड दे हैव देयर ऑर्बिट्स, दे हैव देयर प्लैनेट्स, दे हैव दोज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ये हमारा सन का हमको पता है तथ्य सच, लेकिन दूसरी जगह का हम नकार नहीं सकते। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे भी लाइफ है। यस, मोस्ट ऑफ द थिंग्स Most of the things you may currently believe about the real world are not true. You are much more than you may realize. Life and the universe are much more than you may realize. You may think there is a limited amount of things in the world. You may think there's a limited amount of money, health, and resources, but it is true. There is no lack of anything. Quantum physics tells us there are infinite planet Earths and infinite universe that exist, and we move from our one reality of planet Earth and a universe to another. Every fraction of a second, there is a real world emerging through science. तो ये वापस से वही बात बोल रहा है जो मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि पॉसिबिलिटीज है कि देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्स में, देयर आर लॉट ऑफ सन्स, एंड सन इज अ स्टार, राइट, इट इज द ब्राइटेस्ट शाइनिंग स्टार। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हैं ऐसे, और उन स्टार्स के आसपास में बहुत सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, एंड जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं उनकी अपनी अपनी लाइफ, अपनी अपनी स्टोरी है। तो हम अपने आप को लिमिट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ये सिर्फ हमें इसलिए बता रहा है कि अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आप ऐसा मत सोचिए कि रमा जी के पास अच्छी हेल्थ है तो मेरे पास कैसे आएगी, अगर दीपा जी के पास में अच्छा वॉइस है तो मेरे पास कैसे आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, लिमिट मत करिए अपने आप को। यूनिवर्स के पास में सब कुछ है, एंड अच्छू अपार मात्रा में। आप कितना चाहिए, क्या चाहिए, आपको बस सोचना है, बोलना है, और आपको मिलता रहेगा। ये क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हमें ये समझाना चाह रहे हैं। मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकती थी मैंने कर दिया, इससे ज्यादा मुझे भी आइडिया नहीं है what they want to say. Yes, we will stop here. We will stop here, and now we will do something to see the observer effect. अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन करना चाहते हो तो आप लोग कर लीजिए सब कोई, एंड वी विल सी कि हम जब आंखें बंद करते हैं, हमने अपना पूरा रूम देख लिया, आपने आसपास की चीजें देख ली, उसके बाद में when you close your eyes and when you open your eyes, I will say one color to you, and आपको उस कलर की चीज ढूंढनी है अपने रूम में। So let's see what happens after that. Okay, so now everyone close their eyes. Now open your eyes and look for red. So again close your eyes. हाँ, आप बस देखो, we will discuss it later. Now again close your eyes. Now open your eyes and look for blue. Okay. Again close your eyes. And now open your eyes and search for white. So now 3 colors are okay, आपने कर लिए। अब मुझे बताइए कि जब आप लोगों ने आंखें रूम देखा था, आपने सब कुछ देखा, लेकिन जब मैंने रेड बोला तो आपने क्या देखा? सिर्फ रेड रेड पे कंसंट्रेट, फटाफट Yes, आंख yes.
जैसे आपने आंख खोली, आपको फटाफट किसी ने पावर बुक दिखा दी मुझे, किसी ने कोई तकिया का पिल्लो दिखा दिया, किसी ने मुझे जो भी, अब ब्लू में रंजना ने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी, उसने तुरंत मुझे दिखा दिया Yes. देखो ब्लू। तो आपका जो ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है कि आपको जब बोला गया कि आप ये कलर पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो आप तुरंत उस कलर पे चले जाते हो, आप बाकी सब चीज भूल जाते हो। तो दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट। दुनिया में सब कुछ है, देयर इज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, लेकिन आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप क्या देखना चाहते हो उस समय, आपका दिमाग आपको क्या बोल रहा है देखने के लिए, आप वही देखोगे। अगर आप शॉप में गए हो कि मुझे रेड ड्रेस चाहिए, रेड ड्रेस चाहिए, रेड ड्रेस चाहिए, तो आपको सिर्फ रेड 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 ही दिखेगा, आप बाकी सब चीज भूल जाओगे। एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल गेम यू कैन प्ले विथ योर किड्स और ग्रैंड किड्स व्हेन यू गो टू अ मॉल, ask them to close their eyes and search for red कलर, और वो फटाफट आपको उस भीड़ में आपको रेड कलर के जो भी कपड़े पहने हुए हैं ना, वो आपको दिखा देंगे बच्चे। और बेस्ट चीज जो हम यूज करते हैं, आई यूज इट वेरी फ्रिक्वेंटली, कि स्कूल ड्रेसेस में जस्ट जस्ट थिंक अबाउट इट, जब आप अपने बच्चे को आप लेने जाते हो स्कूल ड्रेस में, आपको सब बच्चे एक जैसे दिखते हैं, राइट? आपको बहुत मुश्किल होता है पिन पॉइंट करना कि राघव कहाँ है, एटलीस्ट मेरे को तो होता था उस भीड़ में। तो व्हाट आई यूज टू सर्च फॉर हिज बैग और हिज वाटर बॉटल का बैग, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो डिफरेंट है। तो वो जो लड़के के पास में वैसी बैग है वो राघव है। दैट वाज माय वे ऑफ फाइंडिंग राघव इन द क्राउड। तो मुझे ऑब्जर्व करना पड़ता था कोई एक पर्टिकुलर चीज को राघव की, ताकि मैं उसे पकड़ पाऊं कि वो कहाँ पे है। वैसे ही when we are in a crowd and I want to look out for my husband or for my bhabhi or for my jeji, what I look for, not faces, we look for the colors, we look for those अगर वो रेड कलर की टी शर्ट पहने हुए या येलो कलर की टी शर्ट पहने हुए, तो we look for the dresses always। मतलब कॉन्शियसली आप देखो, आप कलर ही ढूंढोगे उस भीड़ में, you will never look for the faces। आप सोच लो and then you टेल मी बैक कि क्या करते हो आप लोग, हाउ यू सर्च। अगर आप किसी शादी में हो एंड फॉर सम रीजन आप लोग अलग अलग काउंटर्स पे चले गए और अब आपको फोन आया कि चलो घर चलते हैं, तो हाउ यू, आप कहाँ जाते हो पकड़ने के लिए? या एकदम तो उनका कलर जो कपड़ा पहना है एकदम उसी पे फर्स्ट थिंग आता है कि हाँ, या वेयर इज दैट मरून टी तो शर्ट और वो समथिंग, या यस, तो वो आदमी ऑलरेडी है वहां पे, लेकिन आप ऑब्जर्व करने जा रहे हो ना, आप उसे ढूंढने जा रहे हो। तो यू विल फाइंड, अगर जब आप ऑब्जर्व करते हो, स्टार्ट करते हो ना, देन यू विल गेट द थिंग्स। तो जब जब ह्यूमंस आए एंड देन ह्यूमन स्टार्टेड ऑब्जर्विंग, सारी चीज यूनिवर्स ने पहले से बना के रखी थी। ऐसा नहीं है कि मेरे आने के बाद उसने बनाना शुरू किया, इट्स ऑलरेडी देयर, एवरीथिंग इज देयर। अब मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि मुझे क्या चाहिए एंड द यूनिवर्स इज गिविंग दैट टू मी। तो इट वर्क्स लाइक दैट। तो ये चीज जो है, हमें हमारे पास सब कुछ है और बहुत सारी मात्रा में है। तब देयर इज नो कमी कि अगर आपको मिल गया, गंगावती जी को अगर ड्रेस मिल गई, तो अब उनकी सिस्टर को कैसे मिलेगी? तो ये जो हमारी सोच है, यहीं पे हम गड़बड़ा जाते हैं कि हाँ, उनको भी मिलेगी उनके पसंद की, मुझे भी मिलेगी मेरे पसंद। अब आजकल तो, पहले तो फिर भी ठीक है, यूनिक ड्रेसेस मिल जाती थी किसी बुटीक से लेने में या खुद बनवाने में। अब अगर मैं जाऊं फॉरएवर 21 में, सपोज करिए मैं गई हूँ और मैं एक टी शर्ट खरीद के लाई हूँ, तो देयर आर 110% चांसेस कि बैंगलोर में कोई ना कोई और भी तो उसे खरीद रहा है। उसके तो साइजेस है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, इतनी सारी साइजेस में वो अवेलेबल है, इतने सारे अमाउंट में वो अवेलेबल है। तो कितने 10 लोग और भी तो वही टी शर्ट को खरीदे हैं, तो सामने हम लोग टकरा भी सकते हैं कभी कभी। इट इज पॉसिबल। तो कमी नहीं है यूनिवर्स के पास में, आपको लेना है आप लीजिए, आपको नहीं लेना है इट इज योर विश। आपको डिमांड रखनी है यूनिवर्स के सामने, आप रखिए, आपको नहीं रखनी है इट इज योर विश। लेकिन डिमांड रखने के बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू गिव लव टू दैट डिमांड ऑफ योर्स। इफ यू डोंट गिव लव, इट विल नॉट कम टू। तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो अपनी सोच को बड़ी रखिए, दूसरा डिमांड रखिए, तीसरा में यू आर द मोस्ट पावरफुल एंटिटी इन योर लाइफ। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए द मोस्ट पावरफुल वे इज टू डू मिरर प्रैक्टिस एवरी डे। लव योरसेल्फ फर्स्ट, एंड व्हेन यू लव योरसेल्फ, दैट लव विल कम फ्रॉम विद इन। आप वो जब अपने आप को प्यार से भर दोगे ना, तब वो प्यार इधर उधर सब जगह गिरेगा। जैसे आप ग्लास को पानी पानी से भरते हो, तो वो जब ग्लास भर जाता है, तो वो पानी क्या करता है, इट स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग, वो बाहर गिरना शुरू हो जाता है। वैसे ही जब अपने आप को आप प्यार से भर दोगे, देन यू विल स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, तब आप सब जगह प्यार देना स्टार्ट करोगे। आप कंटेन नहीं कर पा रहे हो ना, आपकी कैपेसिटी जितनी थी आपने कर लिया, अपने अंदर भर लिया, अब आप बांटोगे तो दर्द दुख का कहीं पे नामो निशान ही नहीं छोड़ोगे आप। ये भी ये भी ट्राई करते करते
एवरीथिंग इज प्रैक्टिस यहाँ पे। आप मुझे बोलोगे फिलहाल मैंने तो स्टार्ट कर लिया, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। एंड प्रैक्टिस को प्रैक्टिस समझिए, टास्क या टास्क तो बिल्कुल मत समझिए प्लीज। मुझे ये वर्ड से ही चिढ़ है, टास्क से, कि ये क्या टास्क 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 हम बोलते हैं कि मेरा आज का टास्क नहीं हुआ। टास्क इज समथिंग विच यू आर फोर्स्ड टू डू, यू नो, यू आर नॉट लविंग इट व्हेन यू आर डूइंग इट। टास्क जो टास्क होते हैं, इसके लिए ऑलवेज टेल दैट यू आर डूइंग प्रैक्टिसेस। मैजिक में प्रैक्टिसेस ही होती है, दे आर नॉट टास्क। ओके, एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सब कोई हो। बहुत beautiful explanations आज. I think I was more aware, I was more alert today. I will आज not say, but then I really loved today's session. Really, आज really. Thank you so much. अच्छा, आज हम लोग ने ग्रेटिट्यूड नहीं किया है। Yeah, यस yeah. प्लीज, Let's do gratitude. लेट्स डू ग्रेटिट्यूड। रमा जी, आज आप बहुत दिन के बाद आए हैं ना, इसलिए आपको बहुत अच्छा लगा। नहीं, असल में 2 days, yes, I was absent, but before that I was there, but I was a quiet kind of thing. Okay, maybe a little sleepy or something. तो बस ठीक है, सुन रही हैं करते करते. Yeah. भाग्यश्री, आप उठ गए थे, उसके बाद में आप ऑनलाइन आने में इतना टाइम क्यों लगाए? Yeah, she is there. She is there now, but she was on. She's there, yeah. She was awake also, and she had messaged me. When I messaged her, she has replied back, but she was not there online today. I think maybe some issue with the starting one. See, मैं आप लोगों को वापस बोल रही हूँ, I will not. मुझे टाइम जैसे कि अब 6:31 पे आज खत्म हो गया, तो जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं, सबके अपनी अपनी कमिटमेंट्स होती है 6:30 के बाद से। तो आप 10 मिनट्स अगर पहले लॉग इन कर रहे हो और हम 10 मिनट्स पहले भी स्टार्ट करते हैं, तो काफी कुछ हम कवर कर लेते हैं उस 10 मिनट में। एवरी मिनट इज इम्पोर्टेंट। अभी ये टाइम के ऊपर भी बताएगा, ये बुक अभी टाइम पे भी बताएगा हमें। ब्यूटीफुल थिंग द बुक विल टेल अस कि टाइम इज जस्ट एन इल्यूजन। मतलब जो हम सोचते हैं टाइम का, वैसा कुछ नहीं है। किसी के लिए 1 सेकेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और किसी के लिए वो 1 सेकेंड इज लाइक 10 घंटे भी वो बिस्तर पे पड़ा रहता है। तो टाइम का अगर आप कदर करो टाइम की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करो तो कुछ भी नहीं है। इट इज The best thing that you explained was about the politicians, that ये generally सभी की आदत है, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स जिसे बोलते हैं ना, कि बैठे हैं तो भाई टीवी चल रहा है, we all are literally talking, अरे इसने ये और वो, and ये चीज जो इससे, everything when he strikes back, even this, ठीक है, now we've come to know that okay, negative नहीं बोलना है भाई, ठीक है, okay, but then that thing that it's bringing you, your dreams are going further away from you because of, even if you're criticizing a politician or an event, something happened or somebody did something wrong, that really is, it should be in there in your head always. वो चीज रहेगी तो it is much. I mean, there are so many things कि हाँ, ऐसा लगता है कि हर समय ध्यान रखो कि oh no, उसके तुरंत उसके बाद what concentrated gratitude we can do, या what other situation. See, I could have given any example कि सासू के साथ में आपने कच किया and then you are writing gratitude, but because they are all known to you, ये सब होता है। The best field where we keep complaining is economics, हमारे देश का economic condition and हमारे देश की का रहन सहन, हमारे देश की गरीबी। हम गरीबी को इतना हाईलाइट करते हैं, अरे इंडिया इज रिच इन एवरीथिंग। आप देखो तो सही, मतलब मैं जंगल्स में अभी देख के आई हूँ, माइका ऐसे पड़ा है, रास्ते पे पड़ा है, नो वन इज माइनिंग इट। And this is just one thing. You go to the depths of the jungle, you go to the depths of interiors of India, you will find abundance in वहाँ के लोग खुश है। मध्य प्रदेश के जंगल के लोग खुश है। जबलपुर से ज्यादा हैप्पीनेस आई फाउंड इन कान्हा नेशनल पार्क के आसपास के एरिया में। दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड इन व्हाट दे आर डूइंग। दिस इज आस सिटी ड्वेलर्स, जिनको सब चीज में प्रॉब्लम्स, इश्यूज, ब्रेकडाउन्स होते हैं। एंड पॉलिटिक्स तो एक ऐसा कमाल का चीज है ना, किसी को लेना देना कुछ नहीं है उससे।
किसी को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते इंडिया के पॉलिटिक्स का। हम खाली बैठ के बातें बना सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं इसके बुराई किए। और हम क्या पता है सबसे बेस्ट पार्ट, हम अच्छाइयाँ नहीं बोलते हैं पॉलिटिक्स में। हम किसी की अच्छाइयाँ नहीं बोलते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लाइफ की। अगर आपको Right. पॉलिटिक्स में बात भी करना है तो टॉक अबाउट द गुड थिंग्स विच द पीपल आर Good डूइंग। things, yeah. आप ममता बनर्जी 100 बुरी होगी, आई मीन यहाँ पे मैक्सिमम पीपल आर फ्रॉम कैलकाटा, तो मेरे लिए ये बहुत टफ Hmm. था ममता बनर्जी की अच्छाई ढूंढना मुझे। लेकिन अब क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है तो मैंने उनके लिए पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश की। अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो मुंह बंद रखो। मैं तो उसकी साड़ी को भी नहीं छोड़ा, मैंने कलकत्ता के लाइट्स को भी नहीं छोड़ा। क्या ये ब्लू ब्लू हर जगह ब्लू व्हाइट लाइट लगा रखा है, मैंने कितना बोला है उनके लिए, कितना कितना मतलब। Really. This also. हमको भी याद है जब मतलब आई एम कैलकाटा, ओरिजिनली कैलकाटा, नाउ इन वाराणसी, तो मैं तो बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा ही हूँ। तो यस आई रिमेम्बर कि जब वो ब्लू एंड व्हाइट लाइट्स एंड एवरी पेडेस्ट्रियन, एवरी स्ट्रीट वॉक इज ब्लू एंड व्हाइट पेंटेड। मैंने But then कुछ नहीं छोड़ा, definitely मैंने Calcutta को कुछ नहीं उसने छोड़ा। बहुत ब्यूटीफुल कर दिया। I don't know about the economic situation, but otherwise Calcutta is very very. उसने जो स्ट्रीट लाइट्स लगाए हैं मैंने उसकी भी बुराइयां की है। मतलब ये कोई स्ट्रीट लाइट है, ये अंग्रेजों के जमाने का स्ट्रीट लाइट, इसने क्यों लगाया है, तो क्या नहीं बोला है मैंने उसके लिए। लेकिन अब मैं बस बस अब हो गया, अब आई डोंट वांट टू से एनीथिंग फॉर हर, इट इज ओके व्हाटएवर शी इज डूइंग। अब पावर में तो वही आई है ना, बीजेपी तो नहीं आ पाई ना, तो कुछ तो होगा उसके अंदर में कि वो आई। अब वो जो भी साम दाम दंड भेद यूज करती है, इट इज हर लुक आउट, व्हाई शुड आई बॉदर। मैं तो जाके वहां पे उसके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती हूँ कि मैं अपना एक मोर्चा निकालूंगा ना उसके लिए कुछ कुछ बोलती रहूं। तो आई हैव स्टॉप, अब जिसको जो बोलना है बोलते रहो। मैं तो अपने कान में रुई डाल देती हूँ कि भाई हो गया, बस हो गया, जितना बोलना था बोल दिया। बिकॉज मेरे जो छोटे छोटे ड्रीम्स है इंडिया के पॉलिटिक्स से नॉट रिलेटेड, जो ड्रीम्स है दे आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो इसके लिए मैंने बोलना बंद कर दिया। अब हमारे तो बहस होती रहती है। अब जैसे मेरे जवाई है, ही इज ऑल्सो अ कांग्रेस सपोर्टर,